talk, the title of or the theme of today's evening. It's about corporate and fascist takeover of this country. And I think, we can't think of better people both in terms of speaking about the corporate control of this country in terms of work that Ranjay has done and about the fascist takeover which, Colin has already established in front of you. So what I am going to do is maybe make a few observations on those two dimensions, but take it as given, in the sense that this country is already going through a phase where there is a major corporate takeover of this country, and also there is a substantial democratic backsliding in terms of the various institutions which uphold democratic values and democratic principles. So I would begin with saying that this is a given reality. And the third aspect that is sort of included in today's theme is the march, is the yatra from Kolkata to Varanasi. So what I thought after listening to both of them is to focus on some issues that could perhaps be brought about in the yatra, during the yatra, in terms of mobilizing the people and in terms of communicating, given these two realities that we have already identified in a very substantial manner, and the other examples can be added to it in terms of how the corporate takeover has taken place, as well as how as I said, the democratic backsliding is happening in this country. I just wanted to say that we have already experienced, in terms of whatever we've experienced in the last many years, a majoritarian takeover of this country, but we are in the process of building a full-blown fascism. At this point, I would venture out and say that the electoral process does lay out a precondition for a fight back against this fascism, which is what Shreya had mentioned in her introductory remarks. And therefore, even though we might feel sitting in Delhi that, elections may have their limitations, I still see some hope in terms of pushing back this majoritarian takeover in this country in the coming months that lie ahead of us. Especially the context in which we are meeting today is where major electoral results are going to be coming tomorrow. I think it would not be inappropriate for me to begin with the premise that even though the process, they're talking about electoral bonds and so on and so forth, and the general, the electoral process getting compromised in numerous ways, I would still go with the proposition that there is space, and the ruling party, the majoritarian ruling party, has faced flack in various regions, and there is still space for pushing back at the electoral level. And therefore, I'm not going to express and say that we yet have a full-blown, the threats are there, but we are in the process of moving from a majoritarian takeover to a full-blown, building a full-blown fascism. So we begin with that reality. In other words, if you look at this literature, I would still say that the principle of electoral accountability has not completely disappeared in India. I mean, elections may be fixed, but they are not completely fixed. And so perhaps, some of the scholars were talking about electoral autocracy. I don't know whether, we should still be using that term, or there is still hope in the electoral process to resist the direction of change that we are going through. Okay. If you are talking about this democratic downsliding, जिस किस्म का भारत में इस समय जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर प्रहार है, वो एक तरफ है, पर मुझे लगता है कि जो नॉन इलेक्टोरल डायमेंशन है इस सारे इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस की, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, freedom of religious practice, freedom of association, and the attempt to push back judicial controls, judicial oversight, and various examples that have been brought in front of us.
It is interesting, and I wanted to sort of begin my conversation with this, that if you look at India's ranking across various indices, given these two facts that we already have in front of us, and I mean, I'm not going to be very precise in terms of the years, but what we are talking about is in the last 10 to 12 years, on most indices globally, there is a slide down. If you look at the electoral democracy index, you move from 100 to 108 out of 202 countries. If you look at press freedom, 150 to 161 out of 165. Human freedom, 111 to 119 out of 165. Economic freedom, 112 to 131 out of 184. Democracy index, 51 to 53 out of 166. Human capital, 105 to 116 out of 130. World Justice Project, 66 to 77 out of 140. Global Hunger Index, 55 to 107 out of 121. Global Gender Gap, 114 to 135 out of 146. So what I was talking about, this downsliding, is happening across the board, where you can see the connect between hunger at one level and the corporate takeover at another level, and the downsliding in the democratic institutions and democratic principles at another level. But there is one index in which India has done very well, and I give you half a second to guess, and that index is the ease of doing business index. The ease of doing business index, India's rank has improved from 142 to 63 out of 190 countries, approximately across the same period that we are talking about. So I think there is a clear message here that the political process and the economic process, the direction in which it's going, and the policy making on whose behalf that is being done, I think it gets summed up in this just broad sort of overview of how the ranking have moved across these years. यानी जो पिछले कुछ समय में देखें कि किस किस्म से तमाम इंडिसेस पे जो ये अलग-अलग एजेंसी दुनिया भर में एकत्रित करती हैं, उसमें भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और आपको पता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्चुअली अब भारत की देश की पहचान का हिस्सा है। भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी के मुल्क में आज जो देश की पहचान है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर है, और राष्ट्र की जो इज्जत है, राष्ट्र की जो दुनिया में साख है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की साख से बहुत करीबी तौर पर जुड़ी हुई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अगर आप मेक इन इंडिया कैंपेन को पढ़ेंगे और उस दौरान जिस किस्म का भारत सरकार ने लिटरेचर निकाला, जिस किस्म के स्लोगन्स निकाले, जिस किस्म की बात दुनिया भर में कही, उससे यह स्पष्ट होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब भारत की विश्व में पहचान का आधार चिन्ह बन चुका है। इस रियलिटी के साथ साथ हम इससे भी वाकिफ हैं कि अभी ये नवंबर खत्म हुआ है, अभी दिसंबर का दूसरा दिन है। अभी नवंबर में ही प्रधानमंत्री ने जब ये इलेक्शंस का माहौल चल रहा था तो जो ये फ्री राशन की बात की, तो इसको बढ़ाया गया और 5 सालों के लिए बढ़ाया गया, और उसमें खुद आंकड़ा दिया गया कि ये कहा गया कि 80 करोड़ लोग जो अभी तक जिनको ये राशन मिल रहा था, and just translating what he said in English, he basically said that for the next 5 years the stores of 80 crore people in my country will keep burning. This is the guarantee that this government makes. यानी भारत सरकार स्वीकार कर रही है कि 140 और जितने भी करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों का चूल्हा जो ये राशन दिया जाता है इसके आधार पर चल रहा है। ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। यानी 60% आबादी को आज भी जिंदा रहने के लिए सरकार का ये राशन पर निर्भर होना पड़ रहा है। ये भी इस रियलिटी का जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका एक निशान है जो सरकार खुद स्वीकार कर रही है। इसके साथ साथ प्रणिंजय ने अपने काम में और अपने भाषण में दोनों बातों में कहा कि इसी दौरान कौन कितना अमीर हुआ है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी, हिंदुस्तान में इनइक्वालिटी के क्या आंकड़े देती है, ये हमारे सामने है, मैं इस पे समय नहीं लगाऊंगा। ये इंडिया की जो रिपोर्ट का टाइटल है वो इंटरेस्टिंग है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया स्टोरी। और 2012 और 2021 में 40% जो वेल्थ है इस कंट्री की वो 1% आबादी को गई है, ये हमें पता होना चाहिए। और केवल 3% हिंदुस्तान की जो वेल्थ है वो बॉटम 50% को गई।
मुझे लगता है ये आंकड़ा काफी है हमें बताने के लिए कि किस किस्म की पॉलिसी मेकिंग और किस किस्म का आर्थिक ढांचा हमने खड़ा किया है अपने लिए, जिसके ऊपर हम ये सारी चर्चा आज कर रहे हैं। कितने लोग गरीब हैं ये सब मैं इसके आंकड़े में स्किप करता हूं। सवाल जो मैं खड़ा करना चाहता हूं हमारे सामने और यात्रा के संबंध में वो ये है कि ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी आउटकम्स है और जो ये एक आउटकम है कि एक तरफ 60% आबादी को राशन दिए बिना और एक तरफ जहां पर कि कुछ 1% लोगों के पास इतना बड़ा हिस्सा है वेल्थ का, ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी आउटकम्स है, जो ये दो आउटकम्स हमारे सामने हम अनुभव कर रहे हैं, जो रोज जी रहे हैं, ये कैसे चल रहे हैं, ये कैसे, ये जो जुगलबंदी है ये किस किस्म से बजाई जा रही है कि ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं और उसमें कोई मेजर दिक्कत नहीं आ रही है इस तरीके से कि आज भी इलेक्टोरल प्रोसेस की लेजिटिमेसी बनी हुई। यानी एक तरफ अगर सरकारें बनती हैं ऐसी नीतियां बनाने के लिए जो सबके हक में है, और नतीजे ये है जो हमने अभी छोटे 5 मिनट में बात की जिनके बारे में, तो क्या है जो हो रहा है जो ये इसको अलाउ कर रहा है, ये क्या है जो हमारे सामने हमारे बीच हो रहा है कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी आउटकम्स चल रहे हैं, ये बात चल रही है, इसके बावजूद सारा कुछ चल रहा है। और मुझे लगता है कि हमें 1 मिनट को पीछे हटके ठहर के सोचना चाहिए कि क्या है। और मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, इसको कई मुश्किल शब्दों में समझाया जा सकता है, पर अगर इसको बहुत साधारण तौर पर कहा जाए तो मुझे लगता है कि न्यू पैरामीटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स, यानी जो आज की इकोनॉमी पॉलिटी के बीच में समाज को लेकर जो समाज के बीच में वार्तालाप हो रहा है, उस वार्तालाप में कोई कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही है, जिसको मैं किसी का टर्म बोरो करूं तो एक ऐसी कॉमन सेंस बिल्ड की जा रही है जिसमें लगता है कि वो जो कॉमन सेंस है अगर वो यूनिवर्सली ट्रू है, यानी जो वो कॉमन सेंस कह रही है, और मैं लिस्ट करूंगा कुछ चीजें आपके आगे कि वो कॉमन सेंस क्या है जिसमें आपको एक सामूहिक सांझ मिलेगी, आपको लगेगा कि जो हमारे आसपास डिस्कोर्स चल रहा है उसमें कोई भी पॉलिटिकल फैक्शन हो, बाय एंड लार्ज सभी उस कॉमन सेंस से एग्री करते हैं। वो जो कॉमन सेंस है उन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की, वो ये संभावना पैदा करती है कि सबको ये लगता है कि अगर वो फॉलो हो रही है तो एक्चुअली बाकी सब डिस्टॉर्शन, बाकी सब उन प्रिंसिपल से हटने के कारण है, अगर वापस हम उन प्रिंसिपल्स पे आ जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये संभावना हर समय पैदा की जाती है कि ये डिस्टॉर्शन को बस एड्रेस करना है, चाहे वो इलेक्शन का रिजल्ट हो, चाहे किसी पॉलिसी की चर्चा हो, हर समय ये बात की जाती है कि बस वो देख लें कि हम किसी तरह से कन्विंस कर सकें आपको कि ये डिस्टॉर्शन है, ये कहीं से भी अंदर से जड़ों में रूटेड नहीं है। और वो जड़ों से में रूटेड नहीं है, इसको अगर मैं हल्का शब्द इस्तेमाल करूं, इसको जो छिपाने का माध्यम है, इसको जो इसका जो इल्यूजन पैदा करने का माध्यम है, वो पैदा करने का माध्यम जो है वो ये कॉमन सेंस अक्रॉस अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज, जो सिस्टमैटिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे मीडिया के द्वारा, हमारी रोज की चर्चा के द्वारा, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा रोज के तौर पर हमारे बीच में बिल्ड की जाती है, जिससे ये संभावना पैदा होती है। और मुझे लगता है कि जब यात्रा की बात हो रही है तो यात्रा ना केवल ये दो जो रियलिटीज है, कॉर्पोरेट टेकओवर की और फास्टेस्ट चेंजर्स की, इसको बताएं, पर इसके साथ साथ ये भी शेयर करें कि ये जो दोनों चीजें बिल्ड हो रही है, इसके पीछे कुछ कॉमन सेंस या कुछ कॉमन आइडियाज क्या हैं जिनके आगे हमें सवाल खड़ा करना चाहिए। बिकॉज अगर उनके आगे हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो ये जो प्रोसेस है इसकी रीइंफोर्समेंट का, इसकी कंटिन्यूएशन का, इसका समय और बढ़ सकता है। दूसरे तरीके से मैं अगर अपनी बात को कहूं तो कहूंगा कि एक किस्म का बैकग्राउंड म्यूजिक है जो बजाया जाता है as the game is played on, and unless we puncture that background music on a day-to-day basis, ये बैकग्राउंड म्यूजिक को अगर हम चैलेंज नहीं करेंगे उसके एलिमेंट इन कंपोनेंट पार्ट्स में, तो हमारे लिए जो जिस किस्म की चुनौती आज हम फेस कर रहे हैं उसमें यही चुनौती बन जाती है कि ऑन वन हैंड वी कैन से दिस बट ऑन द अदर हैंड वी कैन से दिस, बिकॉज वो बारीकियों पे बात रह जाती है। जो ओवरऑल दिशा है, वो दिशा कैसे बिल्ड की जा रही है, वो हमने अभी जिसको कहेंगे पूरी तरह खोल कर लोगों के बीच में साझा नहीं किया है कि लोग वो लेयर्स को भी देखना शुरू करें। ये कंसेंसस ऑन सर्टेन आइडियाज कैसे बिल्ड की जाती है, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
ये मैं इस पर बात नहीं रख सकता कि कैसे बिल्ड की जाती है, पर मुख्य आइडियाज क्या है जिनके अराउंड ये कंसेंसस बिल्ड की जाती है, वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसको मेरे को लगा कि शायद यात्रा में भी लाभदायक हो सकती है। जो पहला आइडिया मुझे लगता है बहुत तरीकों से, बहुत रास्तों से, बहुत तरीकों इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के माध्यम से जो बिल्ड किया जा सकता है, वो एक ये आइडिया है कि आज जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो स्टेट है जो हमारे सामने है, ये स्टेट वो सब कुछ नहीं कर सकती जो वो करना चाहती है। यानी सरकारें लोगों की मदद करना चाहती है, सरकारें लोगों का भला करना चाहती हैं, सरकारें ऐसी नीतियां बनाना चाहती हैं जिससे कि आम व्यक्ति का लाभ हो सके, ये सारी बातें करना चाहती हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन कुछ एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता है जिसमें पूंजी का भारत से भागने की संभावना का जो खतरा है, उस कारण से अच्छे विचार होने के बावजूद, अच्छी मंशा होने के बावजूद, अच्छे इरादे होने के बाद भी सरकारें वो नहीं कर पाती जो वो करना चाहती। इन अदर वर्ड्स, in a very subtle mechanism, governments want to do what they are elected for, but they are unable to do because of the international constraints. So there are international global constraints which do not permit government the options to do what it wishes to do. I don't have the time, but accepting this idea, I'll just state it in a line, essentially means we have conceded in principle the domination and hegemonic presence of finance capital in this country. Because once we have conceded this, it's very interesting कि यहां पर स्टेट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। बहुत सारे उदाहरण आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखिए, कोविड के समय में जब आपको हमेशा ये बताया गया, अमेरिका ने बताया, यूरोप ने बताया, IMF ने बताया, वर्ल्ड बैंक ने बताया कि किसी किस्म का भी सरकारी व्यय, सरकारी खर्चा करना बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। साउंड फाइनेंस का प्रिंसिपल होता है, फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी महत्वपूर्ण है, अगर नहीं करोगे तो क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, वगैरह वगैरह, उसके बहुत सारे आर्गुमेंट। इसके बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज ने खूब सारा एक्सपेंडिचर किया, भारत ने ये रास्ता नहीं चुना, भारत ने कोई और रास्ता चुना, बस भारत ने कोविड के रिस्पॉन्स में सप्लाई साइड इंटरवेंशन के रास्ता चुना। क्यों चुना? क्योंकि उसने कहा कि अगर हम बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे, हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा, तो हमारी ग्लोबल बैंकिंग बढ़ जाएगी, जिससे स्टॉक मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा, एंड उसके अपने खतरे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करें। यानी स्टेट का एक किस्म का इंटरवेंशन संभव नहीं है, क्योंकि मदद करने की इच्छा के बावजूद हम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जितना भी परिवर्तन भारत में आया है, खासतौर से 1990 के दशक के बाद, वो एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन का है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो ये वो स्टेट है जो, ये स्टेट वर्सेस मार्केट का जो अंतर हमें बताया जाता है, ये मिसनॉमर है और ये जानबूझ के बिल्ड किया जाता है। स्टेट इज एन एक्टिव प्लेयर इन एवरीथिंग, none of the audience here needs to be told this. So state can regulate, deregulate and re-regulate, but somehow the principle that is built in our mind as a common sense is कि ये स्टेट है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, उसके हाथ बंधे हुए हैं वो करने के लिए जो फाइनेंस कैपिटल नहीं पसंद करता, उसके हाथ खुले हुए हैं वो सब करने के लिए जो फाइनेंस कैपिटल पसंद करता है। ये जो डिस्टिंक्शन है, ये हम बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कह रहे हैं, ये कंक्रीट लेवल पर रोज के जिंदगी के संदर्भ में समझाया जा सकता है। इसको बताना चाहिए कि ये जो सरकार है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि ये जो पूरी स्पेक्ट्रम ऑफ चॉइसेस उसमें असर्ट कर सकती है, लेकिन ये चूज कर रही है क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको राशन का अधिकार नहीं देना चाहती, लेकिन आपको राशन समय समय पर डोज के तौर पर, उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर बांटने को तैयार है, लेकिन प्रिंसिपल के तौर पे, अधिकार के तौर पर आपको राशन नहीं देना चाहती। ये इसका पीछे एक कारण है, वो एक सिग्नल दे रही है, किसी के बिहाफ पे फंक्शन कर रही है, इसलिए ऐसा कर रही है। ये एक एग्जांपल। तो ये जो आइडिया है स्टेट के फंक्शनिंग का, ये स्टेट का जो आइडिया है, ये फाइनेंस कैपिटल के हाथों में खेलने का आधार है इसका। एक और आइडिया इससे जुड़ा हुआ है कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो नेशन इज डूइंग गुड, अगर स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो नेशन इज डूइंग बैड। वी हैवंट चैलेंज दिस आइडिया,
ऑन अ सिस्टमैटिक डेली बेसिस, सेइंग कि आज जब स्टॉक मार्केट ऊपर उठा है तो जो ये उछाल है, ये इसका तुम्हारे मेरे हम सबके लिए क्या मतलब है, या हिंदुस्तान के जो ये 80 करोड़ लोग जिनको खाना बट रहा है उसके लिए कोई मतलब है या नहीं। यानी जो नेशन है वो उनका नेशन और हमारा नेशन, ये हम कॉन्स्टेंटली अंडरलाइन नहीं कर रहे। और अगर हम कॉन्स्टेंटली अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं तो जो ये नेशनलिस्ट डिस्कोर्स है, जो नेशनल डिस्कोर्स है, उसके तहत ये संभावनाएं पूरी तरीके से एक किस्म की खास बात को राष्ट्र के प्रति के खास विचार को आगे ले जाने में कॉन्ट्रीब्यूट करे, एक इन्वर्टेड लॉजिक पैदा करे। ये ट्रू है कि कैपिटल एक जगह से भाग के दूसरी जगह जाता है, ये भी ट्रू है कि देश को बहुत नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कैपिटल फ्लाइट होगी, लेकिन इसके मायने किसके लिए क्या है ये हमें खोलने की जरूरत है। सो देयर इज दिस इन्वर्टेड लॉजिक व्हिच इज प्रेजेंटेड एज अ जनरल गुड, एंड इट इज दिस जनरल गुड दैट वी नीड टू बी क्वेश्चनिंग इन डिटेल ऑन एन एवरीडे बेसिस। दैट्स द फर्स्ट आइडिया दैट आई वांटेड टू talk about. I mean, there's a lot of things one can say on this, but I'll skip it. This idea that the state is a non-activist state. आपको पता है कि जो FRBM एक्ट है, जो हिंदुस्तान में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट बिल, जो ये कहता है कि 3% ऑफ फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो होना चाहिए। अमेरिका में तो कोई FRBM एक्ट नहीं, आप गूगल करके देखिए। यानी जो मुल्क दुनिया को कह रहा है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिस्कल ऑस्टेरिटी प्री रिक्विजिट है आपको इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आज की तारीख में, उस मुल्क में ऐसा कोई नियम नहीं कि वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी अपने ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली ले रहा है। उसका सेंट्रल बैंक क्या करता है, किसके लिए करता है, वो अलग बात, लेकिन उसने कॉन्स्टिट्यूशनली अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली है। हमने कॉन्स्टिट्यूशनली अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली। आज की तारीख में FRBM को क्वेश्चन करने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन करना, क्योंकि हमने पास कर दिया, हमने बिल पास कर दिया है कि ये हमारे, अब पार्लियामेंट जब चाहे उसको ढील दे सकती है, पार्लियामेंट जब चाहे उसको खींच सकती है पतंग की डोर की तरह, लेकिन हम और आप उस पर प्रश्न चिन्ह सीमित तौर पे लगा सकते हैं क्योंकि हमने उसको पास कर दिया। अब जब खुले बाजार की दुनिया है, ग्लोबलाइजेशन की बात है, आपको अपनी कमोडिटी दुनिया में बेचनी है, आपको पूंजी को यहां लाना है, तो सरकार के पास पैसे कमाने के बहुत सीमित रास्ते बचते हैं। आपको कस्टम ड्यूटीज घटानी है, टैरिफ घटाना है, इनकम टैक्स घटाना है, ये सब कुछ आपको कम करना है अगर आपको बाजार में अपने को सर्वाइव करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि खर्चे के लिए बहुत सीमित पैसा आपके पास बचेगा, और वो पैसा जो आप बात कर रहे हैं आज वेलफेयर की, जो ये डाटा दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों का वगैरह, ये जो वेलफेयर की बात कर रहे हैं, इसमें ये इसके लिए खर्च नहीं होगा। How this is built over a period of time as an idea is a complex process, as I said. Because there are students here, I only wanted to say that this complex framework through which these ideas are built, उसमें educational institution एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। In other words, शिक्षण संस्थाओं में कौन से कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं और उन्हें क्या विचार दिया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है, बिकॉज वो इस विचार को चैलेंज करता है या इस विचार को रीइंफोर्स करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलोशिप की दिशा, कौन से इंस्टीट्यूशन आज डोमिनेंट हैं, उनमें आपको ये प्रिंसिपल, अगर आप आज प्रोजेक्ट प्रपोजल देंगे कि आप इसको क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपको बहुत कम टेकर्स मिलेंगे। Another idea that I wanted to underline, and I just two more ideas, 5-7 minutes more, 5 minutes, 2 to 3. Okay. Another idea, I'll just pinpoint the point. Another idea that circulates around us is that जो हिंदुस्तान में लेबर है, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होगी तो लेबर की मांग बढ़ेगी, और ग्रोथ होगी, लेबर की मांग बढ़ेगी, तो लेबर की तो वेजेस भी बढ़ेगी। ये दूसरा आइडिया है जो कॉमन सेंस के तौर पर सिस्टमैटिकली हमें बिल्ड किया जाता है। ऐसा कोई उदाहरण ना है, ना ऐसी कोई संभावना है, बट इट इज built on an everyday basis. Linked with this idea is another idea that productivity and wages are linked. If you look at the global data, the real wages are going down, productivity is going up.
उसका बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है कि प्रोडक्टिविटी ऊपर क्यों जा रही है और वेजेस कम क्यों जा रहे हैं, ये समय नहीं है पूरी बात बताने का। पर जिस किस्म की दुनिया में बाजार में वस्तुएं बिक रही हैं, उन वस्तुओं के बिकते हुए प्रोडक्टिविटी का बढ़ना पूरी तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि जहां डिमांड है और जिस किस्म की वस्तुओं की डिमांड है वो ऐसे गुड्स हैं जिनमें जो that are not essentially labor intensive goods, and therefore productivity is increasing at one level, but the real wages are not. And why the real wages are not increasing is because you have a vast army of unemployed available there. Right? So this is the second idea that is prevalent around us. और हिंदुस्तान में जॉबलेस ग्रोथ की बात लोग करते हैं। ये स्पष्ट है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो भी जाती है, कल जीडीपी क्वार्टर का डेटा आया है कि हिंदुस्तान में अचानक उससे जॉब मार्केट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें पूछने की जरूरत है कि जो ये ग्रोथ है ये किस समय किस मौके पर क्या संभावनाएं पैदा करेगी कि वेजेस बढ़ जाए। ये सवाल को भी खोलना चाहिए, हर समय खोलना चाहिए, बिकॉज ये एक ट्रुथ की तरह, एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह, एक सच्चाई की तरह कॉन्स्टेंटली हमारे बीच, हमारे दरमियान बेचा जाता है। तीसरा जो एक बात है वो ये है कि इससे जुड़ी हुई है कि ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ जो एक मामला है वो है कि मैंने वेजेस का डेटा नहीं दिया, बट रिसेंटली अभी इलेक्शंस के दौरान वेज का डेटा आया है और आप लोग को देखना चाहिए कि वेज एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर लेबर की वेजेस कितने प्रतिशत बढ़ी हैं और कितने प्रतिशत से नहीं बढ़ी हैं, और इंटरेस्टिंगली किन स्टेट्स में बढ़ी हैं और किन स्टेट्स में नहीं बढ़ी हैं, ये भी देखने की जरूरत है। एक और आइडिया जो ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे को एक सच की तरह देखा जाता है, वो ये है कि जो पैटी प्रोड्यूसर्स हैं, यानी इनफॉर्मल सेक्टर है, छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनको धीरे धीरे खत्म करना है, क्योंकि एफिशिएंसी डिमांड करती है कि हम इन सबको खत्म करें, ये बहुत इनएफिशिएंट है। ये एक सच की तरह हमें हमारे बीच में बेचा जाता है, और इसके संग जुड़ा हुआ है कि हमें डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आगे बढ़ना है, जिसके बिना हम वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते, तो हमें लैंड का कंसोलिडेशन भी करना चाहिए। और आपने फार्म लॉस के दौरान ये सारा अनुभव किया, फार्मर्स ने जिसको इन प्रिंसिपल चैलेंज किया और सरकार ने अपने को डिफेंड किया, उसके बाद टेम्परेरी फार्म लॉस को विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद बैकडोर से वही मकसद को पूरा करने का प्रयास चल रहा है। एक अगर आपने नहीं देखी है तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट आई है जिसने प्रूव कर दिया है कि जो ये फार्म लॉस थे वो किसने बनाए, और बड़ा स्पष्ट है कि नीति आयोग जब पॉलिसी डिस्कस कर रहा था, वो दलावी कमेटी की फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए क्या करना है, तभी एक एनआरआई आते हैं और वो कहते हैं कि उनकी जेब में फॉर्मूला है फार्म इनकम को कैसे डबल करना है। नीति आयोग उनको लेती है अपने इंस्टीट्यूशन में और उसके आधार पर एक पूरी पॉलिसी बनाती है। और जो फार्मर मूवमेंट ने पूरी तरह से सवाल खड़ा किया था कि ये कॉर्पोरेट के बिहाफ पर लॉज बनाए जा रहे हैं, वो कहने की जरूरत नहीं है, वो प्रूव हो गया इन द एक्चुअल प्रोसेस कि वो एनआरआई बिजनेसमैन के कहां इन्वेस्टमेंट थे, वो किन एग्री बिजनेस से जुड़ा हुआ था, और उसके विचार के आधार पर फार्म लॉज बनाए गए। सो द लिंकेज बिटवीन पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Two last points. So the one is about labor and the second is about welfare. About labor, lot of humbug is proposed as common sense. Lot of ideas are circulated in a manner where it says how it is useful for labor. But I've said a bit on labor, so I'll just close by saying something on welfare. If you remember, and these are all very important in terms of building that common sense. If you remember that RBI report, where the RBI report June 2022, which started a public debate on welfare schemes, रेवड़ी आपको याद होगी, स्टेट सब्सिडीज एंड फ्रीबीज, स्टेट सब्सिडीज एंड फ्रीबीज के ऊपर एक आरबीआई ने रिपोर्ट की, जिसके बाद रेवड़ी को लेकर पूरी एक चर्चा भारत में अनलीश की। और एक लाइन में अगर मैं समराइज करूं, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, और जो बहुत सारे आज की तारीख में ओपिनियन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ऊपर वेलफेयर को लेके हिंदुस्तान में एक नई परिभाषा को डेवलप करने के लिए लगातार आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। और वो क्या परिभाषा है कि वेलफेयर जो है वो एंटाइटलमेंट और राइट से नहीं जुड़ा हुआ है। वेलफेयर इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी इन द ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स, and this efficiency in transfer of benefits is related to the digital transfer, and essentially whether it is welfare oriented or not,
ये डिपेंड करता है देने वाले की मंशा। नो, इट इज द इंटेंट ऑफ द गिवर which defines whether it is truly a welfare measure or it is a non-welfare measure. And this is something that has been written. I don't want to name the institutions. Please do your research and see the range of papers now being produced on redefining the notion of welfare. So all I am requesting to you is कि जब हम ये यात्रा की बात कर रहे हैं तो ये दो सत्य हमारे पास हैं कि कॉर्पोरेट टेकओवर है, डेमोक्रेटिक डाउनस्लाइडिंग है, फासिज्म का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन ये जो सिस्टमैटिकली पिछले समय में, लंबे समय में बिल्ड किया गया है और अभी भी बिल्ड किया जा रहा है और बिल्ड किया जाता रहेगा, वो इन छोटे छोटी आइडियाज की जो कॉमन सेंस है, एक कंसेंसस बिल्डिंग है, उसके माध्यम से किया जा रहा है। और यात्रा का काम ना केवल ये सच्चाई को बताना है कि ये दोनों बातें हैं, पर ये भी पंचर करना है कि कैसे ये आइडियाज अपनी पकड़, अपनी जड़ें, अपनी पहुंच लोगों के दिमाग में, जहन में बनाते हैं, जिसको हम अगर चैलेंज करेंगे तभी हम ओवर लॉन्ग रन, आई थिंक दिस इज बिल्डिंग ऑफ द टू को हम चैलेंज कर पाएंगे। धन्यवाद।